Now students, today we are going to start new chapter in maths, chapter 7, cubes and cube root. Now what is the meaning of cube? When number is multiplied by itself 3 times, then we obtain the cube of the number. For example, 2 cube is equal to 2 multiply 2 multiply 2. Cube means multiplication of same digit 3 times, right? Suppose number is we have taken 2. 2 cube means 2 multiply 2 multiply 2 3 times. Then what we get? 2 to the 4 to the 8. So cube of 2. 2 का cube क्या होगा? 8. When a number is multiplied by itself 3 times means number 2 को 3 times multiply किया है, तो हमको आंसर में क्या मिला? 8. तो 2 cube means is 2 का cube क्या होगा? 8. For example, 3 cube. Then 3 cube meaning 3 times multiplication of 3. 3 3s are 9, 3s are 27. Then 4 cube. 4 cube meaning 3 times multiplication of 4. 4 4s are 16, 4s are 64. And it is denoted by cube root. This is the symbol of cube root, right? For example, suppose cube root of 27 asked, then what we will write? Cube root of 27 is 3, right? This is the symbol of cube root. We have to write here 3. If we are not writing 3 here, then it will be square root. Now the word cube is used in geometry. Generally we are using this word in geometry, right? And cube is a solid figure which has all its sides equal, right? Solid figure means cube कैसी figure है? Solid figure है, और ये geometry word use होता है, geometry में ये word use होता है, right? Suppose I will draw this way cube, right? This is the cube. ये कैसी फिगर है? 3 डायमेंशन. इसकी साइड और उसकी जो हाइट है वो सब कैसा है? इक्वल. साइड इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू लेंथ. वो क्यूब में इक्वल है. मीन्स इसकी फॉर्मूला क्या हुई? ये हाइट है, ये हाइट है, साइड है और लेंथ है, राइट? तो ये तीनों सपोज ए लिया तो क्या होगा? एक क्यूब होगा उसकी फॉर्मूला क्यूब की. तो ये फिगर्स, दिस फिगर इज 3 डायमेंशन आर नोन एज अ सॉलिड फिगर. इसको क्या बोलते हैं? सॉलिड फिगर. नाउ द क्यूब ऑफ एनी इंटीजर इज कॉल्ड परफेक्ट क्यूब. मीन्स हम लोग जो भी नंबर का क्यूब निकालते हैं वो क्या है? परफेक्ट क्यूब. सपोज 2 क्यूब इज इक्वल टू 8. तो 8 क्या हुआ? परफेक्ट क्यूब नंबर. 3 क्यूब इज इक्वल टू 27. तो 27 क्या हुआ? परफेक्ट क्यूब हुआ, राइट? सो यू हैव टू रिमेंबर 1 to 10 and 11 to 20 cube of number, right? In textbook, look here, example is given, table 1. एक 1 number is taken 1. 1 cube is equal to 1. 2 का क्यूब क्या होगा? मीन्स 2 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2. 2 का क्यूब 8. 3 क्यूब मीन्स 27. 4 क्यूब मीन्स 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4 इज इक्वल टू 64. देन 5 क्यूब इज इक्वल टू 125. 6 क्यूब इज इक्वल टू 216. देन 7 क्यूब is equal to 343. This you have to remember. 8 cube means 512. 9 cube means 729. 10 cube means 1000, right? Now look here, cube of odd number is odd and even number is even. Look here, 1 is odd, then cube of 1 is odd number, right? Cube of 2 is a even number, then you got even number. मीन्स जिसका
नंबर ऑड है तो उसका क्यूब फाइंड करोगे तो आंसर में आपको क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा, और जो इवन नंबर होगा उसका इवन, 2 इवन नंबर, देन 8 ऑल्सो यू गेट इवन, 4 ऑल्सो इवन, then also you got cube, 64 is also even number, 5 is odd, then you are getting 125. so odd number का क्यूब odd निकलेगा और even number का क्यूब even निकलेगा, right? now look here, if unit digit is 1 4 5 6 9 0, then unit 2 of number is also same digit. now look here table 2, here 11 cube, so 1 3 3 1, 11 is odd and after cube unit digit also get 1, so it is also odd, means odd का odd मिला, even का even. now check unit digit, unit digit यहाँ क्या है 1, तो after cube you are getting 1. now look here 4 114 का क्यूब करोगे तो भी यूनिट प्लेस क्या मिलेगा 4, यूनिट डिजिट 4 है तो पीछे भी आपको क्या मिला 4. नाउ टेक यूनिट डिजिट 5 1 5 15, यूनिट डिजिट इज 5, आफ्टर क्यूबिंग ऑल्सो यू गेट यूनिट प्लेस 5, राइट. देन 6 1 6 16 में 6 यूनिट प्लेस, हियर आफ्टर क्यूबिंग ऑल्सो यू गेट 6, राइट. तो यूनिट डिजिट 1 4 5 6 9 होगा तो आफ्टर क्यूब यू ऑल्सो गेट सेम डिजिट 1 4 5 6 एंड 9. इफ 0 देन यू आर गेटिंग 0, राइट. नाउ लुक हियर, इफ यूनिट डिजिट 2 then you will get 8. look here 12, unit digit is 2, after cube what you get 8 number, right. now look here, next is 8 number 18, after cubing what you are getting unit digit 2, means unit digit number 2 होगा तो आपको 8 मिलेगा और 8 होगा तो क्या मिलेगा 2, 2 का 8 होगा 8 का 2 होगा यूनिट डिजिट, राइट. मीन्स जो नंबर का आप क्यूब करोगे यूनिट डिजिट पर 2 होगा तो आफ्टर क्यूब 12 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1728, मीन्स यूनिट डिजिट आपको क्या मिला 8, मीन्स 1818 का आप क्यूब करोगे 18 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन, देन व्हाट यू गेट 5832, मीन्स यूनिट डिजिट आपको क्या मिला 2, मीन्स यूनिट डिजिट 2 होगा तो आफ्टर क्यूबिंग आपको 8 मिलेगा, 8 होगा तो आपको 2 मिलेगा. सेम 3 आफ्टर क्यूबिंग क्या मिला यहाँ पे 7, 13 का क्यूब 13 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन किया तो 2197 यू गेट, राइट. सो 7 इज़ ऑन यूनिट प्लेस, मीन्स 3 था यूनिट डिजिट तो आफ्टर क्यूबिंग आपको क्या मिला 7 यूनिट प्लेस मिला. सेम ईयर 17 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन किया क्यूब किया तो आपको यूनिट डिजिट क्या मिला 3, मीन्स यूनिट डिजिट नंबर 7 था तो आपको 3 मिला, यहाँ 3 था तो 7 मिला. मीन्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, इफ यूनिट डिजिट इज 2 देन यू विल गेट 8 एंड 8 देन यू गेट 2. if unit digit is 3 then you get 7, if 7 then you get 3, and other numbers as it is you will get. if unit digit is 0 here then you will get here 30. same here 10 1 0 then you are getting 30. now Hardy-Ramanujan number. what is the Hardy-Ramanujan numbers which can be expressed as a sum of two cubes? Two different ways are called Hardy-Ramanujan number. For example 1729, उसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, 1728 प्लस 1 लिख सकते हैं और दूसरा 1729 को 1000 प्लस 729 लिख सकते हैं, राइट. मीन्स 1728 किसका क्यूब है 12 का क्यूब है, राइट. मीन्स ये 12 क्यूब और ये 1 का क्यूब, ये 1 किसका क्यूब है 1 का, राइट. 1 किससे आया 1 का क्यूब. नाउ 1000 का क्यूब रूट क्या है 10 क्यूब होगा. 10 को 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको 10 मिलेगा, 1000 मिलेगा.
नाउ 729 का क्यूब रूट क्या है? 9. 9 क्यूब है. 9 को 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको 729 मीन्स हार्डी रामानुज नंबर क्या है? इट कैन विच नंबर कैन बी एक्सप्रेस सम ऑफ टू क्यूब्स इन डिफरेंट वे, टू वेज. मीन्स 1729 है, उसका वो सम है किसका? सम है 12 क्यूब और 1 क्यूब का सम है, राइट. सम ऑफ टू क्यूब मीन्स 12 क्यूब और 1 क्यूब का सम है. ईयर 10 क्यूब और 9 क्यूब का सम है, राइट. और इसको क्या और दो तरीके से हमने ये किया. 1729 को 1728 प्लस 1 करके किया और 1000 प्लस 729 से किया. मीन्स दोनों का क्यूब है 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब मिलके 1729 मिलता है और 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब का सम करके भी हमको 1729 मिलता है, राइट. मीन्स ये नंबर को हमने दो डिफरेंट वेज से हमने डिस्प्ले किया, राइट. मीन्स ये दो नंबर का क्यूब है, दो तरीके से हमने किया. ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? हार्डी रामानुज नंबर. एंड 1729 इज कॉल्ड डल नंबर. इसको क्या बोलते हैं? डल नंबर. एंड 1729 इज स्मॉलेस्ट हार्डी रामानुजन नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ हार्डी रामानुजन. और देर आर many infinitely number like this. Now in this chapter in 7.1 we learn three methods, which number is perfect cube or not, right. Now look here, example 1 is here given. Is 243 is a perfect cube? What we have to do? By prime factorization method we have to factorize 243 like this way. Then you get factors of 243. 3 multiply 3 multiply 3. Here 3 multiply 3 means 3. Here how many times? 3 times. Here only 2 times. Then it is a perfect cube or not? For perfect cube number all number will be in a group, 3 group, right. जैसे परफेक्ट स्क्वायर में क्या था? सभी नंबर का 2 का पेयर बनता था. वैसे यहाँ परफेक्ट क्यूब में क्या होगा? 3 का ग्रुप बनेगा, राइट. तो ये 3 in first group 3 is 3 times, but second group 3 is only 1 time. Therefore it is not a perfect cube number, right. Now look here, second example. Is 392 is a perfect cube? If not, find smallest natural number by which 392 must be multiplied so that product is perfect cube. जैसे परफेक्ट स्क्वायर में जो विच स्मॉलेस्ट नंबर यू शुड मल्टीप्लाई देन यू गेट परफेक्ट स्क्वायर. इसी तरह से यहाँ परफेक्ट क्यूब दिया है. 392 का फैक्टर्स क्या है? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 2 मल्टीप्लाई 2 3 टाइम्स, 7 मल्टीप्लाई 7 2 टाइम्स. लुक हियर 2 in first group 2 is 3 times, but in second group 7 is only 2 times. Therefore it is not a perfect square. So what we do? We should multiply both side by 7. जो नंबर कम पड़ रहा है, जैसे परफेक्ट स्क्वायर में करते थे, जो नंबर 1 टाइम था तो उसको स्मॉलेस्ट नंबर दोनों साइड से मल्टीप्लाई करते थे. वैसे यहाँ दोनों साइड के ग्रुप बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना है. तो ये 7 का ग्रुप 3 का नहीं है, तो यहाँ 392 मल्टीप्लाई 7 करोगे, यहाँ 7 मल्टीप्लाई 7, देन यू विल गेट 2744 विच इज़ अ परफेक्ट क्यूब नंबर. Now in example 3 also, which smallest number divided so you get perfect square number. Same method of perfect square, right. Here 5324 number is given. So by prime factorization method 2 multiply 2 3 times, 11 multiply 11 3 times, here 5. So which number not making group? Only 5 digit, right. So we have to multiply both side by 5. 5324 0 divided 5 and here 5, so 5 here cancel. Then 5324 0 divided by 5, then you get perfect cube number 10648. It is a perfect cube number. So this method you have to follow in this 7.1.